अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay, yesterday these were the objectives that we discussed. We discussed the anatomy of the stomach, जिसमें हमने उसके caudate and उसके जो थे क्या उसको कहते हैं ओरेड एंड का हमने उसका जिक्र किया था, ठीक है। जो caudate था it was the later portion और जो caudate था it was the earlier portion of the stomach. Then we discussed the motor functions of the stomach. We discussed that the main function of the stomach is the storage of food. And we discussed in the storage function of food, we discussed the vagovagal reflex. आपको याद होगा, ठीक है? There are only 20 participants. Should we continue? We are just doing the revision. All gone. Hello, beta, you there? Yes, ma'am. Ma'am. You there? Yes, ma'am. हाँ सर, 25 पार्टिसिपेंट है, इतने ही है। इससे पहले कौन सा लेक्चर था? मैम ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। अच्छा चलें, आई एम म्यूटिंग यू ऑल। अच्छा, so yesterday we discussed the functional anatomy of the stomach. We discussed that there are the two portions, right? अगर आपको याद है, we discussed the caudate and the oral portion. ठीक है, caudate portion was the later one, including the body and the antrum, and oral portion was the first 1/3 of the body of the stomach. It was included in that portion. ठीक है, we discussed the functional anatomy of the stomach, that the physiological anatomy of the stomach. We discussed that there are certain types of contractions in the stomach, right? Basically on the basic electrical rhythm they are being generated. Actually they are the slow waves, right? Then we discussed that the main function of the stomach. We discussed that the storage is the main function of the stomach, and in that we particularly emphasize on the certain reflexes that were initiated on the stomach being distended with the food, and the signals were then going towards the higher centers and then going back towards the stomachs, and this was known as the vagovagal reflex, and the center was the brainstem, and this was basically responsible for decreasing the tone of the stomach so that stomach could bulge outward maximally in order to accommodate the maximum amount of the food. Then we discussed that the what is hunger contraction and hunger pangs. We discussed that in the state of starving, there is the intense type of contractions that are being initiated in the stomach, and these are known as the hunger contractions. And this is basically when the stomach is being amputated for 12 to 24 hours, and during that period these contractions even are responsible for creating the pain over the pit of the stomach, and that pain is known as the hunger pangs. Okay, that was the hunger contraction and the hunger pangs. Then we discuss how the stomach emptying is being regulated. We discuss certain factors responsible for promoting the stomach emptying, and in that we discuss the the volume of the food is actually responsible for distension of the stomach and promoting the gastric emptying. And then we discussed that the hormone is that is known as the gastrin is responsible for the stomach emptying, and how it is going to increase the stomach emptying. It is going to increase the pyloric pump. एक मिनट बेटा.
ठीक है. And then we discussed the hormones that were responsible for decreasing the stomach emptying, and in that we discussed that if the stomach and the other factors, or we also discussed that the local reflexes and extrinsic nervous system, they are also responsible for affecting the stomach motility and affecting the or inhibiting the pyloric pump. And then we discussed that the stomach, if the distension of the duodenum is being there, then the stomach emptying is being delayed, and that if the acidity in the duodenum is being sufficient, then to neutralize it, time is required by the pancreatic enzyme to get it neutralized. And then we discussed that there is the role of the hormones, including the cholecystokinin and the gastric inhibiting peptide, and glucose secretin hormone, and these were all causing the decreased stomach motility or decreased GIT motility or inhibiting the gastric emptying. Right. Now coming towards the movements of intestine, this is the topic of for today. We discussed that there are different type of movements. We initially discussed in the previous chapters, we named it differently. So in the intestine, we named it as the segmentation, contraction, and the propulsive movements. जो segmentation contractions हैं, they are actually meant for the purpose of mixing purpose. ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. ये स्लाइड से भी वन बाय वन गुजरते जाते हैं ताकि आपको रिमाइंडर होता जाए प्रीवियस लेक्चर. ये हमने इसके पार्ट्स डिस्कस किए थे प्रीवियसली. देन वी डिस्कस द नर्व सप्लाई के वागस उसको सप्लाई कर रही होती है. ये फंक्शन है इसका. ठीक है. मेन फंक्शन जो है वो स्टोरेज है. देन मिक्सिंग द काइम है. एम्प्टी हो रहा होता है स्टमक. This is the vagovagal reflex. This is how the propulsion is being taking place, grinding function, the retropulsion. We discussed that the stomach is having a tight sphincter at the distal part of it, and it is being tightly closed. When the movements are being taking place in the our stomach, slow movements are being, or the propulsive movements are being going to take place in the stomach, carrying on the stomach, and when they are approaching the sphincter, due to the tight closure, they are going to get back, and this is basically the retropulsion phenomenon. It is extremely important for the mixing purpose. Then we already have discussed, this is again the slide showing the retropulsion phenomenon. Then the factors responsible for the stomach emptying. We discussed the role of the hormones and the local nervous reflexes, and these are the hormones affecting the GIT motility. We discussed it in very much detail yesterday. Now coming towards the movements, right? हम यहाँ से start करते हैं. These are the movements of the, ये आपके लिए summary दी हुई है. ठीक है. Responsible for the gastric emptying. ठीक है. The factors that are actually inhibiting the gastric emptying. ठीक है. इसको आप हम already discuss कर चुके हैं कि ये hormones हैं और how they are going to affect the GIT motility. Now coming towards the GIT movements, there are basically the two type of movements. Now coming towards the movements, these are the basically two types of the movements. One is the propulsive movement and the other one is the mixing movements. ठीक है. अब इसके अंदर होता क्या है, जो मिक्सिंग मूवमेंट्स हैं वो होती है ऐसे. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर ऑब्वियसली जब खाना जो है, when the food is going or the chyme is going to distend the intestinal wall, then what is going to happen?
the intestinal wall or our the small intestine is going to be divided into equal segments. That is why the name segmentation is allotted to this particular type of movement. ठीक है, obviously काइम आ रही है GIT में, small intestine में काइम आ रही है, it is going to distend it, right? And when it is going to distend it, what is going to happen? Local जो हमारा enteric nervous system था, it is going to be stimulated, right? And because of this stimulation, it is going to divide the intestine into small segments, right? Which are being equally spaced. ठीक है, जब ये segmentation appear होती है तो जो contractions होती हैं वो कुछ पार्ट जो हो रहा होता है वो रिलैक्स हो रहा होता है, जो कुछ पार्ट जो होता है थोड़े टाइम के बाद वही जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है. और इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस जो है वो चॉपिंग होता है. मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ अभी इसकी, ताकि आपको और समझ आ जाए. दिस इज द सेगमेंटेशन. पेरिस्टाल्सिस में क्या हो रहा था? खाना सिर्फ जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, या मैक्सिमम आपने पढ़ा था रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होती है. फॉरवर्ड वाला पार्ट होता है वो डायलेट कर जाता है ताकि इजीली खाना जो है वो फॉरवर्ड मूव कर सके. सेगमेंटेशन में क्या होता है? GIT के अंदर क्या हो रहा होता है? ठीक है, GIT के अंदर ये हो रहा होता है, जो सेगमेंटेशन या मिक्सिंग टाइप ऑफ मूवमेंट्स है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, when the food is being accumulated or the chyme is going to reach our small intestine, it is going, local myenteric stretch is being there due to the stimulus of stretch. Then it is going to be divided into equal segments. You can see some parts are being dilated and some are being constricted. और उसके बाद थोड़ा वाला पार्ट जो रिलैक्स हो रहा होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है. फिर से दोबारा देखिए, ये वाला कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसके बाद ये वाला जो है वो रिलैक्स कर जाएगा या बल्ज आउटवर्ड कर जाएगा. ठीक है, अब ये वाला जब भी स्क्वीज करता है तो इसका क्या काम होता है? देखो ये वाला पोर्शन जो है वो हाफ ऊपर चला गया और हाफ नीचे चला गया, उसके बाद ये डायलेट किया. तो ये क्या काम कर रहा है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? it is going to chop the food, or that is why it is named as the mixing movements. और ये होती क्यों है? These are also due to the basic electrical rhythm जो कि हमारी GIT के अंदर जनरेट हो रहा है या स्लो वेव्स की वजह से जनरेट हो रही है. ठीक है, और इनका काम क्या है? इनका काम जो है वो मिक्सिंग ऑफ द फूड है विद द secretions of the GIT tract. ठीक है, अब ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम होता है, यू नो वेरी वेल दैट इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द GIT. अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमने ये बात की कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम जो होता है, इट इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ constrictions and relaxation. We named it as the segmentation movements, right? But we very well know that the basic electrical rhythm is different in different part of the GIT. Like in duodenum it is different, in jejunum it is different, and in ileum it is different. ठीक है, duodenum, jejunum, ileum it is different. ठीक है, इलियम के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज 8 to 9 कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट होती है, एंड मैक्सिमम जो होती है वो इट इज 12 per minute, and it is basically when the ideal condition or the ideal stretching is being there. अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है? ये वाली जो GIT कॉन्ट्रैक्शंस है, these are solely due to the myenteric plexus. ठीक है, जो लोकल स्ट्रेच की वजह से जनरेट हो रही होती है. अगर हम एक्साइटेटरी एक्टिविटी जो है somehow by giving the atropine, ठीक है, इट इज अ ड्रग, अगर हम इसको एट्रोपिन से ब्लॉक कर दें तो अगर ये स्लो वेव्स हमारी हैं भी तो भी सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी. दिस इज बेसिकली, एट्रोपिन इज बेसिकली पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग, आई विल कंफर्म इट. ठीक है, तो जो कि पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट को जो है वो लाइज कर रही होती है. ठीक है, तो उसके बाद जो है ये पोटेंशिएशन के लिए हमने पहले भी कहा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर पोटेंशिएटिंग द इफेक्ट ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम और द लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम को,
के इफेक्ट को पोटेंशिएट करने के लिए हमें एक्सट्रिंसिक सिस्टम चाहिए, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. So when we are giving the drug that is blocking this system, then the weak or just the weak enteric system is not able to generate these type of segmentation movements. We will be revising and coming back to it. हम लॉ ऑफ गट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली खाना जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है, इट इज बीइंग जनरेटेड एंड इनिशिएटेड एट द ओरेंट साइड ऑफ द सेगमेंट. ठीक है, ऊपर वाले साइड पर जनरेट हो रही होती है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डिस्टल एंड और द एनल एंड की तरफ ये जा रही होती है. ठीक है, अब एनल डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एंड द पेरिस्टालसिस, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ गट कहते हैं. ये हमने ये डेफिनेशन कर ली थी. और इसके अंदर जो है पेरिस्टालसिस जो है वो उसके लिए मायोएंटेरिक प्लेक्सस रिक्वायर्ड होता है. दिस इज अगेन द पिक्चर इलस्ट्रेटिंग द सेगमेंटेशन मूवमेंट्स. ठीक है, सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस हैं क्या? दीज आर एक्चुअली द रेगुलरली स्पेस्ड इक्वली स्पेस्ड कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, अब जो होती हैं आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं, इरेगुलरली स्पेस्ड भी होती हैं, वीक रेगुलरली स्पेस्ड भी होती हैं. एंड दिस comes in the state of the migratory motor complex. उसके अंदर क्या होता है, जब हम starving state में होते हैं तो हमारी जो GIT जो है वो डिफरेंट irregular electrical rhythm के ऊपर भी जो है contractions generate कर रही होती है और regular के ऊपर भी जो है वो contraction generate कर रही होती है. इवन उसका एक quiescent period भी होता है. ठीक है, और ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये बेसिकली होती हैं, दे आर बीइंग जनरेटेड इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग. ठीक है, और इसके अंदर जो होती हैं ये मॉडिफाइड साइकिल्स होते हैं जो कि स्टमक से इलियम की तरफ जो है वो मोटर एक्टिविटी को शो कर रहे होते हैं. और इसको हम कहते हैं माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज बीइंग जनरेटेड विद द help of the hormone which was being released in the state of starving that we discussed previously, and that hormone was the named as the motilin था. ठीक है, so motilin is basically the hormone which is responsible for the migratory motor complex. And migratory motor complex actually है क्या? It is actually during the movement from the stomach to the डिस्टल इलियम तक जा रही होती है. और ये होता क्या है, क्या इसको कहते हैं, ड्यूरिंग द फास्टिंग एंड बिटवीन द फेजेस ऑफ डाइजेशन, जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड मोटर एक्टिविटी जो है वो मॉडिफाइड होती है. ठीक है, इसके अंदर इरेगुलर इलेक्ट्रिकल रिदम भी होता है, मैकेनिकल एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है. ठीक है, और इसके अंदर रेगुलर रिदम भी आ रहा होता है. इसके अंदर इवन क्विसेंट फेज ऑफ पीरियड भी जो है वो शो हो रहा होता है. ठीक है, so this is the migratory motor complex. This is the migratory motor complex. Now coming towards the again the आपको ये मैं दिखा दूं इसका स्मॉल इंटेस्टाइन की यही वही सेगमेंटेशन दिखाई हुई है. अब इसमें लिखा हुआ भी एक दफा पढ़ लो कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है. इसके अंदर जो है दो तरह की मूवमेंट्स हो रही होती है. एक को हम सेगमेंटेशन कहते हैं, वो डिस्कस्ड इट. ठीक है, विच इज द रेगुलरली स्पेस्ड कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस एट इक्वल इंटरवल्स. ठीक है, these are known as the segmentation of the small intestine, and this is basically for the purpose of chopping of the food. This is basically for the chopping of the food. And what are these waves? Actually these waves are actually the slow waves which are different and different part of the GIT. Let's say in the ileum its frequency is 8 to 9 per minute. In the jejunum and the duodenum it is 12 per minute. And then we discuss the role of the atropine when we are going to block the activity of the enteric nervous system. Then we are not more able to appreciate these types of movements anymore. Then coming towards another type of movement which is known as the
propulsive movements, right? एक सेकेंड, ठीक है। इसमें साथ में जो है वो दिखाई हुई है प्रोपल्सिव मूवमेंट दिखाई हुई है, ये साइड पे सेगमेंटेशन मूवमेंट का लिखा हुआ है और ये प्रोपल्सिव मूवमेंट दिखाया हुआ है और साथ में प्रोपल्सिव मूवमेंट का कंपैरिजन किया हुआ है। प्रोपल्सिव मूवमेंट का क्या काम होता है? दीज आर एक्चुअली द पेरिस्टाल्टिक वेव्स, ठीक है। अब जब जो काइम जो है ये इंटेस्टाइन में आती है तो पेरिस्टाल्टिक वेव जो है इट इज बीइंग इनिशिएटेड, ठीक है। अब ये जो इसकी जो वेलोसिटी होती है इट इज क्वाइट स्लो, इसकी जो वेलोसिटी है इट इज क्वाइट स्लो, इसकी वेलोसिटी जो होती है इट इज हाईली और नियरली इट इज 0.5 to 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। और ये वाली जो इस वेलोसिटी पे भी जो वेव आ रही होती है इट इज बीइंग सपोज टू डाई आउट आफ्टर ट्रेवलिंग merely फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3 to 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद जो है दिस वेव डाई आउट, ठीक है। तो ये इतनी स्लो वेव होती है कि आवर फूड यूजुअली रिक्वायर ऑलमोस्ट 3 to 5 hours from passing from the pyloric end of the stomach to the ileocecal valve. You can clearly imagine how slow these propulsive movements are. हमने क्या कहा, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इसकी जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, दीज आर मेयरली ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर के हिसाब से। और अगर ये इस सेंटीमीटर के हिसाब से ट्रेवल भी कर रही है देन दे आर गोइंग टू डाई आउट आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 3 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो नेट मूवमेंट निकाली गई है मतलब डाई आउट होने के बाद इट इज हार्डली 1 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से मूव कर रही होती है काइम, ठीक है। और इस हिसाब से जो है पाइलोरिक एंड से लेके स्टमक के पाइलोरिक एंड से लेके इलियोसिकल वाल्व तक या सिकम तक जाने के लिए एटलीस्ट 5 hours चाहिए होते हैं, ठीक है, काइम को पहुंचने के लिए। अब ये वाली जो पेरिस्टाल्सिस हो रही है, जो इवन पीक वीक पेरिस्टाल्सिस हो रही है, हाउ इट इज बीइंग कंट्रोल्ड और हाउ इट इज बीइंग रेगुलेटेड, ठीक है। जब हम खाना लेते हैं तो डेफिनेटली हर चीज में वही आ जाता है, जब हम खाना लेते हैं तो स्टमक जो है वो स्ट्रेच होता है, स्टमक स्ट्रेच होता है तो गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्सेस आर बीइंग इनिशिएटेड। गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्सेस क्या करती हैं? ऑब्वियसली मोटिलिटी को इनहांस कर रही होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं? प्रोपेल कर रही होती हैं काइम को, ठीक है। एक इन पेरिस्टाल्सिस का क्या फंक्शन होता है? एक तो काइम को प्रोपेल कर रही होती है, आगे मूव फॉरवर्ड करा रही होती है, और दूसरा क्या काम कर रहा होता है? ये जो काइम रिसीव हो रही होती है जीआईटी में, इसको ऑल ओवर द इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो स्प्रेड कर रही होती है। जब ये स्प्रेड हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आप देखो, अगर ये स्प्रेड हो गई है ऑल ओवर द इंटेस्टाइन तो इसका क्या मतलब है? इसके अंदर और रूम बन रहा है कि हमारे ऊपर गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो मजीद आ सके, ठीक है। जब ये काइम को ऑल ओवर द स्मॉल इंटेस्टाइन विद दिस मिक्सिंग इट विद दिस जीआईटी secretion, it is going to spread it out along the walls of the small intestine. It is actually creating a room for more chyme to come from the stomach, so propelling it towards the GIT. Then the other hormones are there which are responsible for affecting the peristalsis. It includes the जो है वो स्क्रीटिन और ग्लूकाकॉन जो है वो जीआईटी मोटिलिटी को जो है वो इनहिबिट कर रहे होते हैं। गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट मोटिलिटी को ज्यादा कर रहा होता है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन्स। अब यहाँ पे भी देखो, पहले एक पार्ट जो डायलेट कर रहा था, अब वही पार्ट जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन इधर चला गया, ये वाला पोर्शन इधर चला गया। इसका क्या बेनिफिट हुआ? इट इज चॉपिंग द फूड एंड द मिक्सिंग द फूड, ठीक है। इट इज chopping the food and it is mixing the food. Now coming towards this, you can clearly appreciate the mixing and chopping phenomena from this diagram, how it is happening. The key point is the initial portion that is to be dilated is now being contracted, thence providing the mixing and chopping function towards the chyme, ठीक है। अब जो है जो अगर जीआईटी मिकोजा में किसी भी वजह से इरिटेशन हो गई है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? ये एक सेकंड बेटा,
अब उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, वही पेरिस्टाल्सिस वेव दिखाई हुई है, जो कि इसका क्या काम है, प्रोपल्शन है इसका काम, और इसका क्या दूसरा क्या काम है, स्प्रेडिंग आउट द काइम अलोंग द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर जीआईटी में समहाउ किसी भी वजह से इरिटेशन हो गई है, देन व्हाट विल sorry it was disconnected. Can you hear me beta? Yes, ma'am. Okay, 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 ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, इसके अंदर फिर क्या होता है, ये वही प्रोपल्शन मूवमेंट दिखाई हुई है, जिसका क्या काम है, खाने को बोलस ऑफ द फूड को काइम को फॉरवर्ड मूव करना टुवर्ड्स द एनल एंड द स्प्रेडिंग आउट द काइम अलोंग द वॉल ऑफ द intestine. Then we were discussing that if there is any irritation at any point of the GIT or the small intestine, then what happens? Normally, the weak contractions are being converted or transformed into the strong contractions, strong, powerful peristaltic contractions, and this is known as the peristaltic rush. ये वाला जो फूड था, जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, it is now going to be moved abruptly towards the inner area. And how this is going to happen, if any irritant or the bacteria or the viral irritation is being there, then what is going to happen, it is going to stimulate the parasympathetic nervous system along with the intrinsic system, and this system is potentiating the reflexes, and this is sufficient enough to move or sweep the intestinal content all the way from the colon and relieving the intestine or getting rid of the intestine out of the irritant material. ठीक है, and this is known as the peristaltic rush. अब normal language में क्या है, peristaltic rush is a condition when an irritant is there, और उसमें होता क्या है कि अब obviously irritant से the body have to get rid of that irritant material. How the body is going to get rid of that irritant material? The question is that. ठीक है, so it is जो पहले वीक थी या लोकल मायोटायरिक की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स बन रही थी, अब वो क्या करेंगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को साथ में पोटेंशिएट कर देंगी। ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्वीपिंग वे ऑल द वे द जीआईटी टुवर्ड्स द कोलन, देन गेटिंग रिड ऑफ द इरिटेंट मटेरियल, राइट। ये वही फ्रीक्वेंसी दिखाई हुई कि डिड्यूनम में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, स्लो वेव्स के स्टमक में कितनी होती है, इलियम में कितनी होती है, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि duodenum में 12 per minute होती है, in the distal ileum it is 8 per minute, and in the stomach it is 3 per minute. Now ये propulsive movement हम कर चुके हैं। ठीक है, कि जब जो है वो when the food is being there in the GIT, then it is to be moved forward, and it is controlled with the help of certain hormones and with the help of certain nervous signals. ठीक है, जो nervous signals हैं इसके अंदर there are certain reflexes including the gastroenteric reflexes and जो है वो duodeноgastric reflexes, gastroduodenal reflexes being responsible for आज इशू है इसके अंदर ना, जूम के अंदर इट इज बीइंग डिस्कनेक्टेड अगेन ओवर अगेन। अच्छा, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इसकी रिकॉर्डिंग भी अप्रोप्रिएट नहीं होगी, तो फिर आई वॉन्ट बी एबल टू शेयर द लेक्चर। मैं वैसे आपको साइट शेयर कर दूंगी इसकी सारी। ठीक है, देन वी डिस्कस द रोल ऑफ द हार्मोन्स के ये क्या कर रहे हैं, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इनहांस कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, then we discuss the peristaltic rush. ठीक है, in which there was the important role of the irritant material generating the or potentiating the effect of the local myenteric plexus with the help of the parasympathetic nervous system, then cleansing or sweeping the irritant material all the way from the GIT towards the inner area and the getting rid or relieving the small intestine of that particular irritant. ठीक है. Now coming towards the anatomy of the ileocecal valve and the ileocecal sphincter. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये valve है और इसके पीछे जो होता है वो sphincter होता है. ठीक है, ये आपने उसके अंदर मेरे ख्याल है आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा हुआ होगा कि इलियोसिकल वाल्व जो होता है ये दिस इज द वाल्व. ठीक है, it you can clearly appreciate it is protruding into the lumen little bit into the lumen of this is cecum. It is protruding into the lumen of the cecum. ठीक है, और यही वजह है कि ये क्लोज रहता है इसके प्रेशर की वजह से. इसके अंदर जो है whenever it is full with the fecal material, जो भी यहाँ से कंटेंट आता है इलियम से, तो उसके प्रेशर से इट इज बीइंग क्लोज्ड. ठीक है, बैकवर्ड प्रेशर जो है वो इसको क्लोज रखता है. ठीक है, अब ये वाल्व तो है ही है. अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो पीछे जो है वो सर्कुलर मसल की लेयर जो है इट इज बीइंग थिकन्ड फॉर्मिंग अ स्फिंक्टर व्हिच इज नोन एज द इलियोसिकल स्फिंक्टर. ठीक है, अब ये वाला जो वाल्व है और जो स्फिंक्टर है इट इज प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्टिंग ऑफ द फूड इनटू द सीकम. ठीक है, ठीक है, जब जो है सो डैट फैसिलिटेटिंग और एनहांसिंग द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर जो है इसका जो है वो स्फिंक्टर की इसकी रेगुलेशन है इन्होंने बताई हुई है कि स्फिंक्टर जो है वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है. ऑब्वियसली अगर इफ इट इज बीइंग फुल्ड ऑलरेडी फुल्ड तो फिर क्या होगा, इसकी जो है वो प्रेशर पीछे पड़ेगा जो इसको कीप क्लोज रखेगा. इफ इट इज बीइंग ऑलरेडी एम्प्टेड then what will happen, यहाँ पे प्रेशर नहीं है, it is going to open the valve and allowing the content to move from the all the way from the ileum into the cecum. So but when there is an irritation, certain type of irritation, let's say there is a irritation of the appendix, ठीक है, और there is a inflamed appendix. ठीक है, तो क्या करेगा, इलियम की जो मोटिलिटी होगी इट विल बी रिड्यूस. ये वाल्व जो होगा ये टाइटली क्लोज हो जाएगा. ठीक है, so it is how it is going to affect the motility of the ileum in order to empty its content into the cecum. so जब ये distend होगा और जब इसकी कोई inflammation हुई हुई है या irritation हुई हुई है GIT की, तब motility जो है वो ileocecal valve जो है it is being kept tightly closed. लेकिन जो है अगर ये emptied है तो ileocecal valve जो है या ileum की जो motility है it is being enhanced. अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मूवमेंट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखते हो ये वही वाली बात है. दिस इज द इलियोसिकल वाल्व है, पीछे स्फिंक्टर होता है. दिस इज द अपेंडिक्स, दिस इज द सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन शोइंग द टीनिया कोलाई. ठीक है, बीच में सर्कुलर मसल्स होते हैं. दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, अ कर्व. ठीक है, लूज कर्व एंड द रेक्टम एंड द एनल एरिया. ठीक है, ये इसकी एनाटमी है. मैं जल्दी से इसलिए चली गई हूँ इसके ऊपर क्योंकि लेक्चर अब 45 मिनट्स के होते हैं और एनाटमी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हो. अब इसके अंदर मूवमेंट्स जो होती हैं जो मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं, हम पीछे हमने इसको कहा था सेगमेंटेशन. यहाँ पे हम इसको कहते हैं मिक्सिंग मूवमेंट्स को हॉस्ट्रेशंस. क्या कहते हैं इसको हम, हॉस्ट्रेशंस. ठीक है, ये उसी पैटर्न पे होती हैं जैसे वहां पे कंस्ट्रक्शंस अपीयर हुई थी. बस फर्क क्या होता है, यहाँ पे लार्ज कंस्ट्रक्शंस अपीयर होती हैं इन द, और वो भी कहाँ पे डेवलप हो रही है, डेफिनेटली इन द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन है तो लार्ज सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आर बीइंग देयर नेम्ड एज द हॉस्ट्रेशंस. और इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं. और जब ये दोनों मसल्स कंबाइनली कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं या कंबाइनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या, इसकी वजह से क्या होता है,
कि जो अनस्टिमुलेटेड पोर्शन होता है जीआईटी का, इट इज बीइंग बल्ज्ड आउट। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो बल्जिंग हुई हुई है, ठीक है। तो इट इज हाउ इट इज बीइंग बल्ज्ड आउट। अब होता क्या है इसके अंदर कि जो हॉस्ट्रेशन की जो इंटेंसिटी होती है वो 30 सेकेंड्स के लिए पीक पे जाती है और अनदर 60 सेकेंड में इट इज गोइंग टू बी डिसअपियर्ड, ठीक है। और हॉस्ट्रेशन जब कंस्ट्रक्शन अपीयर होती हैं तो होता क्या है, जो फीकल मटेरियल के जो इसकी लाइनिंग के साथ पड़ा हुआ है, इट इज बीइंग डग्ड इनटू दिस फीकल मटेरियल, ठीक है। जो फीकल मटेरियल है, इट इज डग्ड इनटू द लाइनिंग ऑफ दिस हॉस्ट्रेशंस, ठीक है। बस इसके अंदर यही है कि ये लार्ज होती हैं और ये भी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम होता है, और ये हो क्यों रही है, ये लार्ज और सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, तो जो अनस्टिमुलेटेड पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इट इज गोइंग टू बर्स्ट आउटवर्ड इनटू द बैग लाइक पैटर्न व्हिच इज नोन एज द हॉस्ट्रेशन। और हॉस्ट्रेशन की इंटेंसिटी 30 सेकंड के लिए होती है, यानी बल्ज आउटवर्ड, बल्ज इनवर्ड, बल्ज आउटवर्ड, बल्ज इनवर्ड। तो 30 सेकंड के लिए होती है, नेक्स्ट 60 सेकंड में इट इज फेडिंग आउट, ठीक है। और ये जो है ये बहुत स्लोली मूव कर रही होती है टुवर्ड्स द एनस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशली व्हेन इट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द सीकम एंड द असेंडिंग कॉलन, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जो मूवमेंट होती है यहाँ पे आके, इट इज बीइंग वेरी वेरी स्लो, फॉरवर्ड मूवमेंट इज बीइंग वेरी स्लो। और इसका काम क्या होता है, जो फीकल मैटर जो होता है उसके अंदर जो है ये इट इज बीइंग slowly dug into the large intestine। अब जो है जो इसके अंदर प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है, हम उसको कहते हैं मास मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसमें फीकल मैटर को आगे की तरफ मूव करना है। थोड़ा सा मूव जो है वो मिक्सिंग मूवमेंट्स करती हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्दी डाई आउट करती हैं। जो मेन रोल है इसका काम क्या है, इट इज द मास मूवमेंट दैट आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपल्जन ऑफ द fecal matter towards the anal end, ठीक है। और इट इज ऑलमोस्ट रिक्वायरिंग 15 आवर्स के काइम जो है वो इलियोसिकल वाल्व से कोलन की तरफ मूव करे, ठीक है। काइम जो है ऑलमोस्ट टेकिंग द ऑलमोस्ट अप टू 15 आवर्स, रेंज है आपकी बुक में दी हुई, इट इज 18 to 15 आवर कि काइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है। अब मास मूवमेंट्स का काम क्या होता है, ये वेरी स्लो होती हैं। इसके में होता क्या है, इसमें जो है वो फिकल मैटर इट इज बीइंग सॉलिडिफाइड वाया एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वाटर, यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। और मास मूवमेंट जो होती हैं वो एक दफा डाया जो एक दफा जो होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग आती हैं। आपने देखा होगा यू हैव एन अर्ज टू डेफिकेट, ठीक है। जब एक दफा वो फेड आउट हो जाती है, व्हेन यू आर इंटेंशनली होल्डिंग द डिजायर और इंटेंशनली होल्डिंग दैट मास मूवमेंट, देन व्हाट विल हैपन, जो सेकंड वेव आती है कॉन्ट्रैक्शन की इन द रेस्ट ऑफ द डे, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो मास मूवमेंट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर द evacuating इट। और इसके अंदर भी होता क्या है, इसके अंदर भी जो है वो कंस्ट्रक्टिव रिंग बनते हैं इन रिस्पॉन्स टू द डिस्टेंशन, जो हमने बार बार पढ़ा कि डिस्टेंशन के रिस्पॉन्स में रिंग बनते हैं यूजुअली इन द ट्रांसफर्स कॉलन। और ये वाले रिंग्स जो होते हैं, पहला रिंग जो बनता है इट इज गोइंग टू लूज द हॉस्ट्रेशन, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट पार्ट कर रहा होता है, एक रिलैक्स कर रहा होता है। इसके अंदर क्या है कि हॉस्ट्रेशन या जो बैग बने थे दे आर बीइंग लूजनड अप, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्टिंग। और इस तरह से जो है वो फीकल मैटर जो होता है वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में डाउन टूवर्ड्स द कोलन जो है वो मूव कर रहा होता है। अच्छा, फिर आ जाता है इसके अंदर जो है कि मास मूवमेंट इनिशिएट कैसे होती हैं। जब आप खाना खाते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, उसकी वजह से इनिशिएट हो रही होती हैं, और ड्यूडेनोकोलिक रिफ्लेक्स उसकी वजह से इनिशिएट हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी या कोई इरिटेंट आ गया है उससे इंटेस्टाइन को, इट हैज टू गेट रिड ऑफ दैट इरिटेंट मटेरियल, तो उसकी वजह से जो है मास मूवमेंट जो है वो ज्यादा पोटेंशिएट हो जाती हैं।
ये टीनिया कुलाई दिखाना है, जो कि टीनिया कुलाई और सिर्फ सर्कुलर मसल्स हैं, दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, जो हमने पढ़ा था इसके अंदर, जो मिक्सिंग मूवमेंट के अंदर जो हॉस्ट्रेशन थी वो कैसे बनी थी, ठीक है। तो जब ये साइमल्टेनियसली कलेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ पोर्शन इंटेस्टाइन का जो है इट इज गोइंग टू बल्ज आउटवर्ड एंड दिस इज नोन एज द हॉस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हॉस्ट्रेशन है जब टीनिया कुलाई या लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल दे आर गोइंग टू कंबाइन कलेक्टिवली, ठीक है। और जब हमने पढ़ा कि जो है मोटिलिटी कैसे होती है, इट इज बेसिकली ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ द मास मूवमेंट। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे फीकल मैटर आता है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फीकल मैटर, इट इज गोइंग टू डिस्टेंड द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्टेंड करता है तो कंस्ट्रक्टिव रिंग अपीयर होता है इन रिस्पॉन्स टू द डिस्टेंशन और द इरिटेंट पॉइंट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि 20 सेंटीमीटर और बियॉन्ड जो है टू द कंस्ट्रक्शन, जो हॉस्ट्रेशन जो होती है इट इज गोइंग टू लूजन अप, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेट्स से यहाँ पे रिंग बना है तो 20 सेंटीमीटर बियॉन्ड जो है इट इज गोइंग टू लूजन अप, ठीक है। जब देन दे आर इट इज गोइंग टू लूजन अप इट्स हॉस्ट्रेशन और इट इज गोइंग टू लूज इट्स हॉस्ट्रेशन, व्हाट विल हैपन, ये पीछे से कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना हुआ है तो ये क्या करेगा, इसको एकदम से प्रोपेल फॉरवर्ड कर देगा इनटू द फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कोलन, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वही वाली बात आ जाती है कि एक टाइम के लिए जो है दे आर बीइंग फोर्सफुली जनरेटेड और उसके बाद जो है वो जो इनकी इंटेंसिटी जो होती है इट इज गोइंग टू फेड आउट और नई मास मूवमेंट को जो है इट इज टू बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू प्रोपेल द कंटेंट फ्रॉम द sigmoid from the transverse colon all over to the sigmoidal colon, ठीक है। और ये इनिशिएट कैसे कर रही होती हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, लेट्स से पीछे से प्रेशर आया है, लेट्स से गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आई है या ड्यूडेनोकोलिक रिफ्लेक्स आई है, इट इज द स्टिमुलेंट फॉर लूजिंग द हॉस्ट्रेशंस सो दैट फूड कुड बी मूव्ड अपवर्ड और पीछे के लिए रोम बन सके कि पीछे वाला फूड जो है वो अब आगे मूव कर सके, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ये सारी मास मूवमेंट दिखाई हुई यहाँ पे देखो, हॉस्ट्रेशंस आर बीइंग लूजनड अप, ठीक है। और वो खाना जो है वो आगे, दैट इज हाउ इट इज बीइंग मूव्ड अप, यहाँ पे भी देख लो सबसे ज्यादा जो है वो इसमें दिखाया गया है इस वाली पिक्चर में। यहाँ वाली पिक्चर में इट इज बीइंग ब्यूटीफुली सीन, यहाँ पे भी हॉस्ट्रेशन नजर आ रही है, ठीक है। इस वाले में भी नजर आ रहा है कि यहाँ पीछे खाना है तो आगे वाली हॉस्ट्रेशन दे आर बीइंग लूजन अप, पीछे कंस्ट्रक्टिंग रिंग दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वाला तो आगे एक एक सेगमेंट करके मूव ऑन कर रहा है फीकल मैटर। We have gone through this peristaltic rush, hunger pangs, migratory motor complex. We discussed the role of the motilin hormone and it is being in the state of starving or between the meals, ठीक है। swallowing apnea हमने डिस्कस कर लिया था। Now coming towards the last topic, this is the defecation reflex। मेरे ख्याल टाइम हो गया है, इसको फ्राइडे वाले दिन कंटिन्यू करेंगे। आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा, पर्पस ये आपको यूजुअली क्वेश्चन आता है डेफिकेशन रिफ्लेक्स का भी आता है आपको, और आपको मास मूवमेंट्स यूजुअली पूछी जाती है। आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स हो रही हैं, प्रोपल्सिव मूवमेंट, उनका क्या नाम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल है डेफिकेशन रिफ्लेक्स डॉक्टर श्री ही आपको फ्राइडे वाले दिन करवाएंगे, यही रह गया। मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? क्या किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू वेरी मच।